guys, Hakuna Matata. This is the show Maths Master Teacher at Vedantu. Welcome to the channel, and in this session we are going to cover linear inequations in just one go. But before that, let me remind you that Vedantu has come up with this pro subscription. You just have to click on the link given in the description box below and select your grade, select your target, whether CBSE or ICSE, and click on this get subscription button. What will you be getting? You will be getting unlimited live interactive classes. All the recorded lectures will be given to you, assignments, PDFs, and your analysis will be done by Vedantu itself. You need not to worry about anything, right? So I would suggest you guys to take this 6 month subscription plan because 1 month का fee बहुत ही कम हो जाता है and this is going to benefit you all, right? And you can use this coupon code ADKPRO for additional 15% discount. So why don't you guys grab this opportunity, grab this Vedantu Pro, right? And you will be given all these things, live classes, personalized attention, even favorite teachers से पढ़ने का मौका, obviously, right? And your curriculum will be taken care of. Okay, so you need not to worry about anything. Now, moving on to our session. So let's revise linear inequations. So we already know that the definition of linear inequation is a statement of inequality between two expressions involving a single variable x with the highest power 1. Basically क्या है, there is two things. One is linear inequation, the other is linear equation. What is the difference? Equation is something जिसके अंदर जो है equal to का sign आ जाता है. हम when we are equating two expressions, it becomes equation. But when these expressions are either less than or greater than or less than or equal to each other but not exactly equal, right? Then we use these linear inequations, right? So these are the examples of the linear inequations. You can see this is x by 3 is an expression and 1 is also an expression, right? So we are comparing these expressions using this inequality sign which is greater than or equal to, or this sign or this sign. So these are all examples of linear inequations. So like we have already studied, you already know that what is the general form of this linear equation, which is ax plus b equals to c. Now when we study the general forms of linear inequation, the only difference is that instead of this equal to sign, you will be using the signs of inequality. Isn't it simple? For example, less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to, right? These are the signs of inequality. इक्वल टू की जगह पर जब आपने ये लगा दिया तो ये सारे हमारे बन गए जनरल फॉर्म्स ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस, राइट? व्हेन आई टॉक अबाउट दिस साइन, दिस इज बेसिकली स्ट्रिक्टली लेस देन. इफ आई टॉक अबाउट दिस साइन, इट मींस लेस देन और इक्वल टू, दोनों केसेस हो सकते हैं, राइट? सो स्ट्रिक्टली और लेस देन और इक्वल टू में कंफ्यूज नहीं होना, ये आगे जाके यूज होने वाले हैं, राइट? So let's talk about now replacement set or the domain of the variable. This is a very important term that you should know. Replacement set क्या होता है? Suppose हमारे पास एक bucket है, उसमें कुछ नंबर्स डाले हैं, तो वो बन जाता है हमारा रिप्लेसमेंट सेट. बेसिकली उस बकेट में से वी हैव टू पिक सम नंबर्स दैट सेटिस्फाई आवर लीनियर इनइक्वेशन. तो हमारा जो है सोल्यूशन सेट में जो नंबर्स आएंगे, तो सोल्यूशन सेट को अभी भूल जाओ. तो रिप्लेसमेंट सेट क्या है? हमें एक नंबर्स का सेट दे रखा है जिसमें से वी हैव टू पिक द नंबर जो कि हमारी लीनियर इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. समझ में आया? So basically the set from which the values of the variable x are replaced in the equation, that are called replacement, that is called replacement set. और उसको हम domain भी बोलते हैं, and domain is always given in the question. ठीक है, डोमेन दिया होता है, उसमें से आपने वैल्यूज पिक करनी होती है, चूज करनी होती है, राइट? एंड देन देयर इज अ सॉल्यूशन सेट. सॉल्यूशन सेट इज बेसिकली सेट ऑफ दोज वैल्यूज ना, एक्स की वो वैल्यूज जो कि उस लीनियर इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, और वो वैल्यूज हम कहाँ से उठाते हैं? इसी डोमेन सेट से उठाते हैं. समझ में आई बात? ठीक है, तो वो हमारी जो इक्वेशन है, जो लीनियर इनइक्वेशन है, उसको सेटिस्फाई करते हैं. सो नाउ लेट्स स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस. ये बहुत इजी है. एडिशन में क्या होता है? अगर आप दोनों साइड्स पे सेम नंबर को ऐड करोगे तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर आप दोनों साइड्स पे सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इफ यू मल्टीप्लाई ईच साइड विद द सेम पॉजिटिव नंबर,
ठीक है, तो चेंज नहीं होगी इनइक्वालिटी। बट इफ यू आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय अ नेगेटिव नंबर तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। मतलब यहाँ आके आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो या फिर डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना नहीं भूलना। बाकी सब में तो साइन सेम रहता है। ठीक है जी, ठीक है जी। ओके, सो ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप लोगों ने बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। फटाफट से मेरे साथ करो। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? पॉइंट जो हमने प्रॉपर्टीज करी हैं वो यहाँ पर यूज होने वाली हैं। देखो, इट इज सेइंग a इज लेस देन b, देन a माइनस c इज लेस देन b माइनस c। पहले तो ध्यान देखो, यहाँ पे लेस देन है और यहाँ पे भी लेस देन है, मतलब इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। तो देखो क्या कर क्या रहे हैं हम, c को दोनों साइड्स पे माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग c फ्रॉम बोथ साइड्स। तो ये सही लग रहा है क्योंकि इनइक्वालिटी चेंज नहीं होनी चाहिए जब हम सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसा हमने पढ़ा, राइट। नेक्स्ट वाले में देखो क्या हो रहा है, a इज ग्रेटर देन b, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रही और हम कर क्या रहे हैं, वी आर एडिंग c टू बोथ साइड्स। यहाँ पे भी प्लस c हो गया, यहाँ पे भी b प्लस c हो गया, तो ये भी सही है। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर क्या हो रहा है, a इज लेस देन b, इनइक्वालिटी यहाँ पर चेंज हो रही है। बट हम कर क्या रहे हैं, वी आर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद c एंड c इज अ पॉजिटिव नंबर, तो इनइक्वालिटी तो चेंज नहीं होनी चाहिए थी। चेंज तभी होती है जब हम नेगेटिव नंबर से या तो मल्टीप्लाई करें या तो डिवाइड करें, मतलब दिस इज फॉल्स, ये सही नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन है और यहाँ पे भी चेंज होगी, बट वी आर डिवाइडिंग इट बाय सी ना, तो ये भी चेंज नहीं होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज दैट वी हैव स्टार्टेड बिफोर, राइट। एंड कमिंग ऑन टू दिस फिफ्थ क्वेश्चन, a माइनस सी इज ग्रेटर देन b माइनस डी। देखो यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे मतलब इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रही, पर हम कर क्या रहे हैं ये भी समझो कि यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हैं, c को हम उधर लेके जा रहे हैं तो प्लस c हो गया, d को इधर, तो ये बिल्कुल सही है, दिस इज ट्रू। एंड व्हाट अबाउट दिस सिक्स्थ क्वेश्चन, इसका क्या है, a इज लेस देन b एंड इट इज सेइंग कि c इज ग्रेटर देन 0, तो हम क्या कर रहे हैं, c को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लेस देन था, यहाँ पे हो गया ग्रेटर देन, पर हम कर क्या रहे हैं, c इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि c पॉजिटिव है, c इज पॉजिटिव और c को हम दोनों साइड्स पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या इनइक्वालिटी चेंज होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। यू आर वेरी राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, इट इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि कब इनइक्वालिटी चेंज करनी है और कब नहीं करनी है। इज इट क्लियर? वेरी गुड गाइज। अगर समझ में आ रहा है तो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। ओके, so now let's see how do we represent the solution set. We have already studied what is a solution set, कि मतलब जो x की वो values that satisfies our linear inequation, ठीक है, तो that becomes the part of our solution set. समझ में आया? तो now how do we represent the solution set on the number line? This we will study now. तो देखते हैं, we use two type of circles, one is darkened circle and the other is the hollow circle. अगर मैं डार्क सर्कल यूज कर रही हूँ ना बेटा नंबर लाइन पे, इसका मतलब है सपोज मैं 2 के ऊपर डार्क सर्कल मैंने बनाया, तो इट मीन्स 2 इज इंक्लूडेड, मतलब इनइक्वालिटी या तो मेरी ऐसा कुछ होगा या तो मेरा कुछ ऐसा कुछ होगा, मतलब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और लेस देन 2 नहीं होगा, साथ में ये इक्वल वाला साइन ऐड होगा, तब मैं करूंगी आई विल यूज द डार्क सर्कल। उसका मतलब है कि 2 इज इंक्लूडेड इन माई सोल्यूशन सेट। बट व्हेन आई विल यूज दिस हॉलो सर्कल ना, व्हेन आई विल यूज दिस हॉलो सर्कल, इट मीन्स जो x की वैल्यू है या तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 है या स्ट्रिक्टली लेस देन 2 है, मतलब स्ट्रिक्टली ग्रेटर और स्ट्रिक्टली लेस में 2 नहीं आएगा। When the number is not included in the solution set, we use this hollow circle. Clear है? क्वेश्चन से समझते हैं, बहुत मजा आएगा। तो देखते हैं, तो हम बनाते हैं ग्राफ ऑफ द सेट्स ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। नाउ वी आर गिवन विद टू नंबर्स, हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ से कंफ्यूज नहीं होना वर्ड से, बेसिकली वी वांट टू प्लॉट अ सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन, इट इज कॉल्ड ग्राफ इन दिस, ओके। सो कंफ्यूज नहीं होना कि ग्राफ वो वाला ग्राफ तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपको दो गिवन नंबर्स दे रखे हैं, बेसिकली वो दो नंबर्स क्या बनते हैं, आपके दो एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो देखो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू आर गिवन विद दिस क्वेश्चन, इट सेज गिवन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो ये क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली द डोमेन, और यू कैन से इट इज अ रिप्लेसमेंट सेट, मतलब x की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, रियल नंबर्स होनी चाहिए, ठीक है। एंड फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस, हमने x की वैल्यूज निकाली और हमारे पास इन इक्वेशन दे रखी है
-5 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 3 लेस देन x प्लस 2। तो इसको कैसे सॉल्व करते थे? इन दोनों को ले लो पहले, -5 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 3 और एंड करके अब इन दोनों को ले लो 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू x प्लस 2। करो इसको सॉल्व फटाफट से, 3 को उधर ले जाओ तो -5 प्लस 3 बन जाएगा -2। देखो मैं क्या करती हूँ कि जब भी आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हो ना, कोशिश किया करो कि इनइक्वालिटी को पहले लिखो और फिर बाकी इधर उधर वाले काम करो, ठीक है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी देखो चेंज नहीं हो रही क्योंकि 2x का 2x इधर ही है। अब क्या करो, 2 को उधर ले जाओ, 2 को डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी को वैसे ही रखना है, x को वैसे ही रखना है और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। समझ में आया? ये चीज समझ में आई, ये तो आ गया। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, इनइक्वालिटी को ऐसे ही रखना है। x वाली टर्म्स को इस साइड ले आओ तो यहाँ पे -x हो जाएगा और यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे +3 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आ गया x और यहाँ पे आ गया लेस देन 5। अब हमारे पास ये दो चीजें आ गई, राइट। उसके बाद हमें इसको इस फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। इस फॉर्म में मतलब x की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? -1 से बड़ी होनी चाहिए एंड इक्वल टू भी हो सकती है -1 के, एंड x की वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए? 5 से छोटी। बेसिकली इन दोनों को हमने कंबाइन कर लिया इस फॉर्म। तो अब मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या है, आपको बोला जाएगा कि सोल्यूशन सेट भी लिखो। तो दिस इज बेसिकली सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट को लिखने के लिए आपने क्या करना है, बस आपने यहाँ पे एक चीज ऐड करनी है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये पूरा आपका बन जाएगा सोल्यूशन सेट। अब आपको बोला जाएगा क्वेश्चन में कि इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करो। तो जब आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, पहले तो ये ध्यान देना, जब भी नंबर लाइन बनानी है यू विल ऑलवेज ड्रॉ इट विद अ पेंसिल, अदरवाइज मार्क्स कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमें 5 तक चाहिए तो हम 0 बना लेते हैं, यहाँ पर -1 बना लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ तक बना लिया। अब ध्यान में ये देना है कि जो एंड पॉइंट्स है, एंड पॉइंट्स जो हैं उनमें हॉलो सर्कल बनेगा या डार्क सर्कल बनेगा, ठीक है। अब ये कैसे डिपेंड करता है, ये मैंने आपको बताया। हॉलो कब बनेगा? जब स्ट्रिक्टली इक्वल टू या स्ट्रिक्टली लेस देन या फिर ग्रेटर देन है। और डार्क सर्कल कब बनेगा? व्हेन इट इज लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो पहले हम -1 का देखते हैं। -1 क्या है? स्ट्रिक्टली तो नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू का है, तो मतलब -1 वाली साइड तो डार्क सर्कल बनेगा। और 5 वाली साइड देखें तो यहाँ पर क्या है? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है ना, x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 5, राइट। तो यहाँ पर क्या बनेगा? हॉलो सर्कल बनेगा। यहाँ पर बनेगा हमारा हॉलो सर्कल। तो जो भी इसके बीच में वैल्यूज आएंगी दैट विल बी आवर सोल्यूशन सेट। समझ में आया? दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ द ग्राफ, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं सपोज एक मैं छोटू सा चेंज कर रही हूँ, देखो उससे कितना फर्क पड़ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेट की जगह पर ऐसे x बिलोंग्स टू r की जगह बोल दूं कि x बिलोंग्स टू i है, इंटीजर है, फिर क्या करना है? देखो डोमेन सेट या रिप्लेसमेंट सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बेसिस पे ही यू विल डिसाइड द सोल्यूशन सेट। तो इसको निग्लेक्ट नहीं करना, सबसे पहले इसका ही ध्यान देना है कि किस में से वैल्यूज निकालनी है x की। अगर सपोज मैंने ये क्वेश्चन चेंज कर दिया होता और मैंने x बिलोंग्स टू इंटीजर लिख दिया होता तो आप क्या करते? क्या आप ये करते? क्या ये पूरी वैल्यूज आती? क्या फिर बीच में अगर यहाँ पे इंटीजर होता, अगर मैं बोलती x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड मेरे पास ये हमारे पास इनइक्वालिटी बनी है, सपोज अगर ये होता जो मैंने ब्लू में लिखा है, तब हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बनता? देखो अब ध्यान से, यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करेंगे, तभी मैं ये चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो अब मैं इसका सोल्यूशन सेट बना रही हूँ, देखो ध्यान से। तो नंबर लाइन क्या बनेगी? देखो नंबर लाइन पे क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ पे -1 है, 0 है, देन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। बट हमें क्या दे रखा है? x बिलोंग्स टू इंटीजर। जो -1 और 0 के बीच में वैल्यूज आएंगी वो तो पॉइंट वाली वैल्यूज होंगी, तो वो तो इंटीजर का पार्ट नहीं होता ना। तो इसमें क्या आएगा? पहले तो एंड पॉइंट्स को मार्क कर लो कि 1 इज इंक्लूडेड एंड 5 इज नॉट इंक्लूडेड, है ना। उसके बाद जो जो वैल्यूज इंक्लूडेड है बीच वाली, उनको डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करना है। तो हमारा बेसिकली सेट की वैल्यूज किसके इक्वल आएंगी? -1 इज इंक्लूडेड, तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एंड 4 आएगा। दिस विल बी आवर सेट। तो ये जो है 5 नहीं आएगा, तो यहाँ पर 4 तक आएगा, क्योंकि 4 और 5 के बीच वाली वैल्यूज का हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो इंटीजर नहीं होंगी। तो अगर ऐसा कुछ है तो यू विल रिप्रेजेंट द नंबर लाइन लाइक दिस। ये डार्क सर्कल से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। समझ में आई बात?
समझ में आई? ये चीज का ध्यान रखना, डोमेन सेट का हमेशा ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं फिर। राइट, तो यही है आपका। तो ऐसे हमने सोल्यूशन बनाया -1 और 5, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ग्राफ्स बनाने को बोला है कुछ इस तरीके की, एक्स इज ग्रेटर देन ए, मतलब एक पॉइंट गिवन है और एक्स की वैल्यू गिवन है कि या तो वो बड़ी है उस पॉइंट से या तो वो छोटी है। इस केस में व्हाट डू यू डू इज यू ऑलवेज ड्रॉ अ रे। तो आप क्या बनाते हो? रे। रे क्या होता है? जिसका एक एंड पॉइंट डिफाइंड होता है। राइट, सो एक एंड पॉइंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और दूसरा जो है एंड पॉइंट दैट इज नॉट डिफाइंड, तो वो इनडेफिनेटली या तो राइट साइड पे चलेगा या तो लेफ्ट साइड पे चलेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेस देन दे रखा है या ग्रेटर देन दे रखा है। समझ में आया? तो ये देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर दे रखा है यूज द नंबर लाइन टू फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एक्स इज ग्रेटर देन 3। एक्स इज ग्रेटर देन 3 बोला है ना, तो आप सीधा सीधा क्या नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे कि मेरे पास 0 है, मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है एंड स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है ना। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन क्या है कि 3 इज नॉट इंक्लूडेड, तो 3 पे तो हॉलो सर्कल बनेगा। उसके बाद ये सारा जो सेट है ये आप सारा डार्क कर दोगे। दिस विल रिप्रेजेंट द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वेशन। समझ में आई बात? समझ में आई? अगर यहाँ पर दिया होता x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अगर ऐसा कुछ दिया होता तो इसको डिफरेंट कलर से करते हैं, तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्या हो जाएगा? तो इस वाले का हम क्या करते, 0 है 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो मतलब ये इंक्लूडेड होगा पॉइंट, 1 से बड़ा है तो ये सारा आप ऐसे डार्क कर दोगे क्योंकि सिर्फ सिंगल पॉइंट इज गिवन, तो दिस बिकम्स द ग्राफ। समझ में आई बात? यस, ठीक है। उसके बाद अगर लेस देन दे रखा हो, सेम पॉइंट है, लेस देन है तो पीछे वाली लेफ्ट साइड पे चलेगा, है ना रे। और ये देखो x इज लेस देन इक्वल टू 5, तो क्या बनेगा? ये मेरे पास ग्राफ बना रही हूं मैं, सपोज ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। राइट, तो मुझे चाहिए x 5 से छोटा है और इक्वल है। इक्वल है तो मतलब डार्क सर्कल, और 5 से छोटा है तो मतलब ये सारा आप डार्क कर दोगे ये रे तक। समझ में आई बात? तो दिस विल बी द सोल्यूशन सेट। ये सारा आप डार्क कर दोगे कि x की वैल्यूज 5 से छोटी हैं। समझ में आई बात? तो ऐसे आप रिप्रेजेंट करोगे एंड इक्वल टू का ध्यान रखना है, स्ट्रिक्टली है या फिर स्ट्रिक्टली नहीं है, उस हिसाब से आपने डार्क या फिर हॉलो सर्कल ड्रॉ करना है। समझ में आई? दिस इज वेरी 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 इजी। अब मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन आता है हमारा थर्ड जो पार्ट है इस चैप्टर का। उसमें क्या है कि कैसे आप सॉल्व करते हो आपको पहले ही पता है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, दोनों साइड्स को करना है सिंप्लीफाई, ठीक है। उसके बाद आपने लाइक टर्म्स को एक साइड कर देना है, फ्रैक्शंस को रिमूव कर देना है बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद सम सूटेबल नंबर, राइट। उसके बाद वेरिएबल टर्म्स को एक साइड पे कर देना है, कांस्टेंट को दूसरे साइड पे कर देना है, वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 कर देना है एंड यू विल गेट द सोल्यूशन। सिंपल। तो करके देखते हैं ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है वैसे ही सॉल्व करेंगे। इट सेज -1, तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ये और ये। ऐसे तो सॉल्व करते हैं हम लीनियर इक्वेशन, राइट। तो हमें ये क्या दे रखा है, डोमेन। दिस इज डोमेन और यू कैन से इट रिप्लेसमेंट सेट। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो इसको करते हैं जल्दी जल्दी से। -1 लेस देन 3 - 2x एक हो गया। दूसरी जगह पे रुको, मुझे इसको इरेज करने दो सो दैट हमारे पास जगह बच जाए काम करने की। ठीक है जी, तो ये आया एंड यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 - 2x लेस देन इक्वल टू 7। समझ में आई बात? अब क्या करोगे, अब इसको सॉल्व करो, सिंपल सिंपल। तो -2x को इधर ही रहने दो और इसको उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा -1 - 3। बेसिकली ये बन गया -4 लेस देन यहाँ पर आ गया -2x। अब यहाँ पे बेटा जैसे हम करते थे कि माइनस से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं बाय -1, अब आपको प्रॉपर्टी ध्यान में देनी है कि प्रॉपर्टी इज कि अगर मैं नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। यस, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन हमारा चेंज हो गया सी। तो यहाँ पे क्या आया, एक्स की वैल्यू, तो 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो x इज लेस देन 2, ये बना। नाउ व्हाट अबाउट दिस पार्ट, इसको क्या करो, अब x को उधर ले जाओ, इनइक्वालिटी को इधर रखो, x को उधर ले गए, तो x को उधर ले गए तो ये 2x बन गया और यहाँ पे बना 3 - 7, तो यहाँ पे बना हमारा -4 लेस देन इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू आई हमारे पास -2।
एक तो ये बना, बस इसको कंबाइन करना है इस फॉर्म में, राइट। तो x ग्रेटर देन किसके है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, इक्वल टू भी है ना यहाँ पर, और लेस देन किसके है, x इज लेस देन दिस 2। तो ये हमारा बन गया सोल्यूशन सेट वाला पार्ट। तो लिखोगे कैसे इसको, सोल्यूशन सेट को लिखने का तरीका होता है कि x बिलोंग्स टू, पहले आपने डोमेन लिखना है, फिर ऐसे कोलन लगा के यू विल राइट दिस बिकम्स योर सोल्यूशन सेट। ठीक है, तो बस इसको नंबर लाइन पे तो रिप्रेजेंट करना है, तो बना दो नंबर लाइन फटाफट से, कुछ भी नहीं है। तो ये 0 था, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ऐसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो देख लो कि दो एंड पॉइंट्स है, अब हमारे पास डार्क सर्कल लगाना है या हॉलो लगाना है। तो यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे ये लगेगा हमारा डार्क सर्कल, क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन और इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू साइन है। और यहाँ पर 2 की जगह पर लगेगा हॉलो सर्कल, क्योंकि x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2, और ये बीच वाली वैल्यूज आएंगी हमारी सोल्यूशन सेट का पार्ट। ठीक है जी, इसको डार्क कर दें। समझ में आया। सो यही तो था इस चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करो, जो जो भी आपके पास बुक है उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेक योर डाउट्स। समझ में आया। कल होगा हमारा मेंटी सेशन, तो उससे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स जरूर लिख के बता दो, सो दैट आई कैन आंसर दैट, बिकॉज डाउट प्लस मेंटी होगा। पहले आई विल टेक डाउट्स एंड देन वी विल डू द मेंटी। समझ में आया। तो जो भी डाउट्स है किसी भी बुक में से, जो आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स बोल रहे हो, बिकॉज आईसीएसई की कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है ना, तो मैं ऐसे बहुत सारी बुक्स नहीं उठा सकती, बट यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, ओके, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको किस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। समझ में आया, क्लियर है। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, एंड लेट्स कम अप विद दिस होमवर्क क्वेश्चन, एंड इसको सॉल्व करना है आपने और मुझे आंसर देना है ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड ग्राफ द सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। चलो ग्राफ तो आप नहीं बना सकते, तो आप सिर्फ इसका सोल्यूशन सेट मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे प्रॉपर वे से। ठीक है जी। सो वंस अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू गाइज, ये आप ले लो वेदांतु प्रो की जो अपना स्पॉन्सरशिप, ये जो सॉरी सब्सक्रिप्शन है, ये ले लो बेटा। इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, स्पेशली आईसीएसई वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, आप ले लो इसको, राइट। तो इससे क्या है कि आपका पूरा सिलेबस वेदांतु की ऐप पे कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इवन टेस्ट असाइनमेंट्स पीडीएफ सब कुछ मिलेगा आपको। तो एंड प्राइस भी बहुत ही जेन्युइन है। ठीक है, इतना ऑफलाइन ट्यूशंस में भी नहीं आपको इतने में कुछ मिलता, राइट, बट इतने में हम सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। सो कम एंड ज्वाइन आवर फैमिली। ठीक है, तो कुछ भी कम नहीं होने वाला, प्रो बन जाओगे, दैट इज इट। ठीक है, आपकी सारी जो है डाउट्स वगैरह हैं, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग होएगी, एंड फेवरेट टीचर से पढ़ने का ऑब्वियसली मौका मिलेगा। जो टीचर अच्छा लगता है उससे पढ़ो यार, बहुत टीचर्स पढ़ाते हैं वेदांतु पे। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस, एंड टेक केयर, बी सेफ एंड बी रेडी फॉर द मेंटी सेशन। ऑल्सो लेट मी नो योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।